Effect of heat, chemical change. One chemical change you all of you have a study. When the calcium carbonate is heated, calcium carbonate, it is the solid, and when it is heated, triangle is the sign of the heating. Calcium oxide and carbon dioxide gas is formed. Quicklime and carbon dioxide. It is solid and it is known as quicklime. When potassium chloride is heated, when the potassium chlorate is heated, KClO3. So KClO and O2 is formed. This heating takes place in the presence of magnesium oxide. It is catalyst. Magnesium oxide. You know catalyst? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is मैम catalyst? कैटलिस्ट कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि मैम रिएक्टेंट्स में रिएक्शन करके खुद अलग हो जाते हैं. हाँ, ऐसे केमिकल्स जो कि रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, केवल जो है रिएक्टेंट को जो है एक्टिव बना देते हैं. अगर जो टेम्प होना है केमिकल रिएक्शन जो 400 डिग्री सेल्सियस पर होना है, तो वो कितने डिग्री पर 300 डिग्री पर ही हो जाएगा अगर एक कैटलिस्ट इज प्रेजेंट. कैटलिस्ट only accelerate the chemical reaction and retard the chemical reaction, rate of the chemical reaction. हाँ बोलो. अलग अलग रिएक्शंस के लिए कैटलिस्ट अलग होगा ना? हाँ, अलग अलग होगा कैटलिस्ट, अलग अलग. ये जैसे अमोनिया के फॉर्मेशन में तो N2 और H2 गैस को रिएक्ट करवाने के लिए उसमें मॉलिब्डेनम जो है वो कैटलिस्ट लेते हैं, या फिर आयरन कैटलिस्ट लेते हैं, और तब अमोनिया का फॉर्मेशन फास्ट रेट से होता है. अलग अलग ये केमिकल रिएक्शन के लिए अलग अलग वो कैटलिस्ट. Do you know, it is interesting to note that ice and cast iron are two of the few solids that contract on heating. Cold water at 4 degrees Celsius is known as to expand on cooling. At the 4 degrees Celsius, when the water is cooled at 4 degrees Celsius, then it expands. And cast iron is also expand. When the cast iron is formed, so it takes the large volume in compared to the liquid volume, liquid iron. The space occupied by the liquid iron, that is the more, liquid iron takes the less volume, whereas the cast iron takes large volume. When solidification takes place, when the liquid iron solidify, so it takes large space. It is exception behavior. And when the water is cooled at the 4 degrees Celsius, then there is expansion of water also takes place. Why expansion takes place? All of you must see on the blackboard. Why the expansion takes place? In the liquid water, molecules are arranged in this way. It is at the normal temperature. Yes, ma'am. Liquid water. But when it is cooled at 4 degrees Celsius, then all the molecules of water
form cage-like structure. And in this way, the molecules of water takes the large volume. How it arranged? All of you can see how the liquid molecules taking the large space. A spherical shape. Not at. Tejas, just with some Tejas Gautam. पानी तो है फिर अरे तुम लोग म्यूट करो बेटा। देखो अभी कुछ लोग ऐड नहीं थे फोन पर, ये क्या कॉल किया, टाइम से रेडी नहीं होंगे, फिर बाद में ऐड होंगे और डिफिकल्टी तो आती है। हम तुम लोग को सबको बता चुके हैं कि हम तो इतना ये कंप्यूटर हमको पता नहीं है। हाँ, एक बार ऐड कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसमें ऑप्शन भी है, सभी तो ऐड हो गया। तुम लोग यही आ जाओ, जब भी ऐड करवाना हो या कुछ भी हैंड रेज करना या फिर वो कॉल करते हो तो फिर दिक्कत होता है। और वेटिंग में कहाँ है सब? दो मिनट रुको। हाँ, आ गया वेटिंग का ऑप्शन। चिन्मय मैम आप मीटिंग सेटिंग में जाके वेटिंग रूम ऑल ऑफ कर दीजिए मैम, इससे बच्चे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। हाँ, वो तो वो करते हैं बेटा। देखो ना, आज जल्दी में वो हमको तो एक सेकेंड, वो ऐड तो हो रहे हैं जितने आ रहे हैं। अभी एक वो चिन्मय सांडे ले आया, वो ऐड हुआ। तेजस गौतम ऐड हो गया। प्राजता, तेजस चेक कर। यस मैम चेक कर रही हूँ। हाँ, तेजस यस added मैम हो गया है। है। यस मैम। और सनी भी एडेड है। नो मैम। अभी तो आया था सनी का वो ऐड होने का। मैम कभी कभी आप मैम मेरे साथ ही हुआ है बहुत बार मैम, कभी कभी आप पढ़ाती रहती है ना तो मैम क्लास में समटाइम्स ये हट जाता है, इंटरनेट हट जाता है, मैम क्लास ज्वाइन करते तो आप एडमिट नहीं करती है। अच्छा, एक सेकेंड, अभी हम देखो एवरीवन। अच्छा, एक सेकेंड देखो, हम यहाँ जो है ना ऑप्शन आता है कि अलाउ द कैंडिडेट एडमिट ऑटोमेटिकली, उस पे हम क्लिक कर दिए रहते हैं, फिर पता नहीं क्या इंटरनेट की वजह से ऐसा होता है। मैम क्योंकि मेरा बहुत सारा क्लास, मैम कल 6 बजे का ही क्लास पूरा छूट गया मेरा। हाँ, अब 4 बजे का। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लो और फिर वही जो 4 बजे का स्टार्टिंग तो केवल इंट्रोडक्शन था बेटा। ये पुरु रंजन सभी एडेड है ना? यस मैम पूरा एडेड है। मैम आप किसी को होस्ट बना दीजिए मैम, तो वो क्या करेगा ना और बाकी बच्चों को ऐड करते रहेगा। देखो ना, आपका रिकॉर्डिंग भी होते रहेगा। देखो लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज वो लैपटॉप में ऑटोमेटिकली जो है ना
बहुत अच्छा सिस्टम है लैपटॉप में, अपने आप बच्चे ऐड होते रहते हैं। मैम हाँ मैम वो मीटिंग रूम डिसेबल करना होता है। हाँ, लेकिन सबको ना बिफोर 5 मिनट्स तो रेडी हो जाना चाहिए ना। हाँ, यस हम तो वेट करते ही हैं कि सभी ऐड हो तब फिर हम पढ़ाई शुरू करें, लेकिन मैम मैं तो पहले ज्वाइन कर लेती हूँ। हाँ, पहले से एक साइंस का मैथ का पीरियड देखो बेटा, साइंस मैथ एसएसटी, इतना 3 सब्जेक्ट का हम बात बता दे रहे हैं। ये मैं दूसरे टीचर से शेयर मत कर देना हमारी बात को। ये तीनों चीज अगर जरा सा भी तुम्हारा छूट गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी तुम लोग कर सकते हो, लेकिन इन तीनों सब्जेक्ट के लिए तुम लोग एकदम ऑलवेज रेडी रहना। यस मैम। हाँ, एकदम रेडी रहना, क्योंकि साइंस ऐसा चीज है, ठीक है। एनेबल वेटिंग रूम, यू हैव दिस। अब तो सभी एडेड है ना। हाँ, अब देखिए किसी का भी, अब देखो लेकिन एक बात, किसी का भी क्लास छूटता है तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, जरूर यूट्यूब पर जो है वीडियो डाला रहता है, फिर ग्रुप में भी हम सेंड करते हैं, उसको तुम लोग जरूर देखिए। कैसे देखो, एकदम कंप्लीट देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो भी कुछ आलतू फालतू बात करते हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाता है, तो इसलिए यस मैम। हाँ, तो तुम लोग एकदम देख लिया करो, क्योंकि फिर आगे पढ़ाने आगे आने से समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये वाला जो है ना डू यू नो के जगह पे जहाँ पे है ये पेज नंबर 61 में, ये स्ट्रक्चर तुम लोग सभी बनाओ, हमेशा याद रहेगा कि क्यों जो है why liquid water take the less volume whereas the water that is at the 4 degrees Celsius temperature takes the larger volume, due to arrangement of water molecules। ये देखो वाटर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, सब कितने जगह से सेपरेट हो रहा है, केज लाइक स्ट्रक्चर, और इसके वजह से जो है स्पेस ज्यादा ले रखा है। ये देखो 16 मॉलिक्यूल्स है, ये देखो 16 इको आ रहा, ये 16 मॉलिक्यूल्स देखो इतना ही जगह में है, और ये देखो तुम्हारा 16 मॉलिक्यूल्स के लिए कितना सारा जगह चाहिए। हाँ, तो ये हुआ ना, ये सेम वे देयर इज अरेंजमेंट ऑफ द कास्ट आयरन। हाँ, it is the arrangement of water molecules when it is get converted into ice, ओके and मैम। that's why when ice is put inside water, so echo is producing। मैम आपका आवाज रिपीट आ रहा है। यस मैम। देखो तो echo क्यों, मैम आपका आवाज echo क्यों आ रहा है? मैम इट इज ओके नाउ। मैम ठीक आ रहा है। प्राइस अब तुम्हारा आवाज इको हो रहा है। मैम छवि रानी के माइक से सबका वॉइस एको हो रहा है। कहाँ से हो रहा था? मैम छवि रानी के माइक से। ओहो, अब मैम मेरा तो ये देखो सभी, ये बना लो वहां पे पेज नंबर 61 में, जितनी बार पढ़ोगे तुमको याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। ये हमेशा के लिए जरूरत है, ये बहुत सारे क्वेश्चन के लिए जरूरत है। क्यों? व्हाई द आइस टेक्स लार्जर कैटलिस्ट के बारे में एक और बार समझा दीजिए, समझ नहीं पाए मैम। कैटलिस्ट वाला
कैटलिस्ट वाला। अरे इसको पहले पढ़ो ना, इसको पढ़ो, इसको जो पढ़ा रहे हैं वो जो दिया है बुक में इसको पढ़ो। ये देखो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, देखो ये 16 मॉलिक्यूल्स है, तो इतने ही स्पेस में जो है ये अरेंज है। और ये जब 4 डिग्री सेल्सियस पर कूलिंग हो गया, व्हेन इट इज कूल्ड डाउन एट द 4 डिग्री सेल्सियस, it take the cage like structure, and in the cage formation molecules require larger volume, and that's why when you will put the ice into water it started floating, तैरने लगता है। सब लोग देखते हो आइस क्यूब डालते हो ना, शरबत बनाने के बाद आइस क्यूब डालते हो तो वो देखोगे कि शरबत के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, क्योंकि वो लाइटर होता है। स्पेस वो अब वही मॉलिक्यूल्स है, स्पेस ज्यादा लिया हुआ है तो वो उसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो वॉल्यूम ज्यादा तो मास कम। तो और ये भी क्वेश्चन आता है, एक और बताते हैं, यहाँ जरूरत नहीं है लेकिन यहाँ बता रहे हैं तो ये सुनो सभी, कि कभी कभी ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है और आता है कि when ice a glass of water is placed and some ice is put inside the water and glass is filled with the water and ice, when the ice will fill, मैम आपका वीडियो पॉज। अरे वीडियो आवाज तो सुन रहे हो ना सब, वीडियो कहाँ पॉज हुआ देखो तो, मैम नहीं पॉज हुआ और आपका आवाज भी अच्छे से आ रही है। देखो तुम लोग अपना लैपटॉप और मोबाइल ठीक करके तुम लोग रखो। तो क्या है कि when the water is taken in the glass and some ice is put inside the glass and glass is filled with the water and ice, if the ice melt, question is what, if the ice of the glass melt, whether the water will come out of the glass or will remain inside the glass. Ma'am, it will come outside. Ravi, it will come outside. मैम मेल्ट होगा तो आएगा ना। मेल्ट होगा तो अब बता रहे ना। छवि तुम अपना माइक म्यूट करो बेटा, तुम्हारे माइक से मेरा इको निकल रहा है, पता नहीं कैसे। छवि तुम म्यूट करो, देखो अभी जो बता रहे हैं उसको समझो ध्यान से, कि अगर ये ग्लास है, यहाँ देखो ये लिक्विड वाटर है और लिक्विड वाटर का वॉल्यूम कितना कम है और ये आइस है, क्या है आइस। How the ice is taking larger space in compared to liquid water. So when the ice is placed in the glass and ice melt down means it will get converted into liquid water and then it should have less amount of volume. ये जो आइस जो है, आइस मेल्ट हुआ, वाटर में कन्वर्ट हुआ, तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, केज ब्रेक, और जैसे ही केज ब्रेक हो गया तो ये लेसी वॉल्यूम में अपने आप को अरेंज कर दिया। तो अगर आइस मेल्ट करता है तो वाटर बाहर आएगा क्या? अब बोलो, कोई अनम्यूट करके बोलो। तो मैम नहीं, नो मैम वो बाहर नहीं और एक बात और बता देते हैं, यहाँ पे लिखा भी है डू यू नो में। तो अब देखो ये जो है कोल्ड कंट्री में क्या होता है कि अपर लेयर ऑफ द वाटर गेट फ्रोजन, whereas inside the ice in the lower layer liquid water is present, and that's why whatever aquatic animals and plants living inside the water, they are able to survive in the cold country, because the only the upper layer of the water get converted into ice, and as it get converted into ice, it float on the water surface and protect the remaining water from falling the temperature.
So beneath the ice surface, water having the maintained temperature as required for the aquatic plants and animals. And that's why in the cold country, in the winter season, when the all things are frozen, aquatic animals and plants survive in better way inside the water. मैम हाँ, मैम मैंने सुना है कि मैम ग्लोबल वार्मिंग से आइस पिघलती है, तो मैम मैंने कहीं कहीं सुना है कि मैम जो वाटर होता है वो मैम फिर एक्सपेंड करता है जब आइस पिघलती है। हाँ, तो हाँ, तो वाइस ये आइस जो है ये मेल्ट किया तो पिघले, ठीक है, मेल्ट किया तो वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हुआ, ज्यादा स्पेस ले लेता है। लेकिन जो आइस जो है अंटार्कटिक में है, आर्कटिक ओशन में है, वो आइस के फॉर्म में फ्रोजन है और वो हाइट पे है। अब वो जो मेल्ट करेगा तो वो लिक्विड बन करके कहाँ आएगा? लोअर एरिया में ना आएगा। तो लोअर एरिया में आएगा तो वाटर लेवल क्या होगा? राइज अप होगा। और जितने भी सी शोर वाले टाउन्स होंगे, कंटिनेंट होंगे, वो सभी वाटर में सबमर्ज हो जाएंगे। ऐसे तो वो आइस फॉर्म में है एकदम जस्ट लाइक द रॉक, है ना? जैसे रॉक है माउंटेन पे तो उससे कोई प्रॉब्लम हम लोग को नहीं हो रहा है, तो सेम वे अगर वो माउंटेन पे आइस के फॉर्म में है तो उससे हमको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेल्ट करके हम लोग के पास तो नहीं आ रहा ना। अब वही जब मेल्टिंग होता है, देखते हो तुम लोग, अभी का जस्ट इसी मंथ के बाद स्टार्ट होगा कि व्हेन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया गेट हीटेड, देन द मेल्टिंग ऑफ द ice started and the water inside the Ganga river become more and more, and flood like situation come in the plain areas in the North Bihar or in the UP and whatever area present beside the Ganga river. आता है कि फ्लड लाइक सिचुएशन होता है कि जुलाई अगस्त महीने में? हाँ, हम लोग सुनते भी हैं कि वो चमोली घाट में जो है बादल फटने से फ्लड आ गया। तो वो बादल फटने का क्या मीनिंग? कि आइस जो है वो जो हाँ, बोलो बोलो। मैम आइस मेल्ट हो, मतलब होता है जब मैम आइस मेल्ट होने लगता है। हाँ, वो जो आइस जो है कितने दिनों से वो आइस रॉक जैसा है और वहां पे है, प्रेजेंट है, और वो मेल्ट होने लगा तो गंगा रिवर आ रही है तो उसमें मिक्स हो गया वाटर, और फिर मिक्स हो गया तो चारों ओर अब डेप्थ हम लोग कम कर दिए हैं, गंगा रिवर का डेप्थ हम लोग कम कर दिए हैं। जितने टाउन जो है, टाउन एरिया, वो अपना गंदगी जो है, वेस्ट गार्बेज सारा पहले गंगा रिवर में ही डालते थे, और वो गार्बेज डालने से वो गंगा रिवर का डेप्थ क्या हो गया? कम हो गया, तो वो वाटर भी उतना स्टोर नहीं कर सकता है। तो फिर क्या होगा? वाटर कहाँ आएगा? फ्लड लाएगा। हाँ, हम लोग के एरिया में जो लिविंग एरिया है उसमें आएगा। तो ये होता है। और उदित कैटलिस्ट तो पढ़ना नहीं है, सुनो कैटलिस्ट का क्या काम होता है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और उस केमिकल रिएक्शन के लिए सपोज दैट कि अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए है, तो अगर मॉलिब्डेनम या फिर आयरन कैटलिस्ट ले लेंगे तो वो कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर पे ही अमोनिया का फॉर्मेशन शुरू हो जाए। तो वो क्या करता है? कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट एक्सलेट द केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है उसको बढ़ा देता है, एक्टिव बना देता है किसको? रिएक्टेंट को। और कुछ लेकिन कैटलिस्ट जो है वो नेगेटिव कैटलिस्ट है, उसको अगर केमिकल रिएक्शन में लेते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन रेट को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। वो पार्टिसिपेट नहीं करता अपने केमिकल रिएक्शन अंडर कैटलिस्ट डजंट गो एनी केमिकल चेंज,
है ना, doesn't take part in the chemical reaction, but only accelerate the chemical rate of chemical reaction. एक्सलेट करना मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना. क्लियर? यस मैम. यस मैम. और ये 12th तक तो तुम लोग याद रखोगे इस स्ट्रक्चर को, बुक में बनाओ, सभी बना लिए? यस मैम. हाँ, अब इससे बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारा डीलिंग हो जाएगा कि बहुत सारा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. अब ये तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है, और जितनी बार बुक को पढ़ोगे वही बनाओगे तो तुम इतना बार याद कर लोगे. इनमें सांडेले, तुम तो अभी थे, क्लास में थे, बाहर कैसे गया? यही काम करते रहे पूरे. एक तो लेट आएगा चिन्मय. हाँ, चलो, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. All of you are knowing already कि how we measure the temperature, especially human body temperature. There is a device that is known as thermometer, and that is used for measuring the temperature. There are different type of thermometer that is used in different activity. Like the laboratory thermometer. So laboratory thermometer have to measure the temperature more than the 100 degrees Celsius. So a special type of thermometer is made, and in the general case our body temperature is up to how much temperature? 104 106 degrees Celsius. कितना बोलो? 104 degree is the high fever. 30 बोलो 37 तो नॉर्मल है. 37. हाँ, Yes ma'am. बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है. तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये थर्मोमीटर. तो अब देखो, एक वन मेन थर्मोमीटर दैट इज नोन एज मरकरी ग्लास थर्मोमीटर. यही सबसे पहले इन्वेंशन भी हुआ, मरकरी ये मरकरी ग्लास थर्मोमीटर. ये लोग दिन जो आप बुकिंग छोड़ दिए ना, बुकिंग आपको बोले वो नहीं कर पाए, गड़बड़ा गया. जिस बच्चे के भी ये से आवाज आ रहा है, जरा सा वो अपने माइक को म्यूट कर लो बेटा, फिर तुम लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे. माइक को म्यूट कर लो. Ma'am, what is the meaning of indicator? इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करने वाला, दिखाने वाला, बताने वाला. तो थर्मोमीटर में इंडिकेटर देखते हो, कैलिब्रेटेड रहता है ना थर्मोमीटर. वो सभी देखे हो कि कैसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. यहाँ देखो थर्मोमीटर का स्ट्रक्चर. ये और ये स्मूथ पॉइंटर होता है. ending having the mercury. And this is known as mercury glass thermometer because mercury is introduced inside the glass. mercury. मैम मरकरी में एक्सपेंशन होता है ना? हाँ, ये स्मूथली एक्सपैंड. लेकिन आपके लिए अपना रिजर्व रहेगा, मतलब आप जाइए और लगाइए. कितना लेवल होगा? रविशंकर के माइक से आवाज आ रहा है. रविशंकर नहीं पता है. इतना बार भी कहा जाए कि नहीं, तुम लोग सीखो ना. अगर घर में आवाज होता है तो माइक को म्यूट कर लो बेटा. घर में जैसे ही आवाज आए, मान लो कि तुम्हारे पेरेंट्स या आपको नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा बच्चा कंसंट्रेशन पे करे, तुम माइक म्यूट कर लो. उस समय
असल बात घर में तो आदत है नहीं कि घर में क्लास हो रहा है, ऐसा कुछ आदत तो सभी लोग के पास है नहीं। हाँ, तो ऐसा होता है तो अपने माइक को म्यूट कर लो, सभी लोग को डिस्टर्ब नहीं करो। और तुम्हारे पास कान, ये जो कान में रिसीवर लगाते हैं वो लगा करके क्लास करो। हाँ, सबको डिस्टर्ब करना ठीक बात नहीं है ना। अब देखो, मैम, हाँ बोलो। मैम जो मेटल थर्मामीटर के आगे होता है मैम, वो भी थर्मल एक्सपेंशन से ना सेट किया जाता है? हाँ बिल्कुल, थर्मल एक्सपेंशन से ही सेट करते हैं। इसमें क्या है कि देखो, थर्मल एक्सपेंशन का ये बेटर यूज है मर्करी ग्लास थर्मोमीटर। ट्यूब लाइक and this tube like a structure is calibrated for indicating the temperature of body in which it is kept, and it is the mercury. When this body is placed, this thermometer is placed inside the body, so mercury takes the heat and it started expanding, and according to heat of the body there is expansion of the mercury, and Yes, ma'am. looking the expansion of the mercury, anyone can know the what is the temperature of particular body. Yes, ma'am. Why we take the mercury, not any other metals in the mercury glass thermometer? Why we should why scientists have selected the mercury for measuring the temperature? So mercury is shiny silvery liquid. Mercury is metal but it is in liquid form. मैम इसलिए यूज करते हैं मर्करी को थर्मामीटर में क्योंकि वो बहुत जल्दी हीट लेता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। वो कम हाँ, यस मैम, और वो पानी बन जाता है कम टेम्परेचर पे। हाँ, वो ऐसे भी नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर मरकरी जो है लिक्विड फॉर्म में है। और दूसरा क्या है कि वो थोड़े से हीट को भी एकदम हीट सेंसिटिव है। When it is placed inside the body, it started taking the heat. रविशंकर अभी हम म्यूट किए थे ना, क्यों म्यूट किए थे? तुमको सभी को बता दिए है ना कि घर में जरा सा भी आवाज हो तो बेटा तुम अपने माइक को म्यूट कर लो। हाँ, तुम लोग तो एक्सपर्ट हो, हमको तो इतना करने में टाइम लगता है, तुम लोग सभी एक्सपर्ट हो, है नो? है ना? तुम लोग का इतना तो तुम लोग के सभी के पास टैलेंट है। हमको तो अभी वो उसको चिन्मय सांडिल है और उसको एंट्री करने के लिए कितना 2 मिनट का खोजने पड़ा, 2 या 1 मिनट हमको सर्च करना पड़ा। तुम लोग को तो ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी हम सभी को बता रहे हैं कि जब भी क्लास हो तो तुरंत अगर आवाज आता हो तुरंत म्यूट कर लो अपने माइक को और फिर सुनो आसान ये आराम से। अब देखो क्या है कि मरकरी expand smoothly when it is placed inside the body, and it is silvery, shining silvery liquid. शाइनिंग से अब अगर मान लो कि दिखाई ही नहीं दे कैसे एक्सपेंशन हुआ, कितना एक्सपेंशन हुआ, तो कोई बॉडी टेम्परेचर जान सकेगा क्या? नहीं, तो नहीं जान सकेगा। तो ये क्या है, देखो इसका क्या क्या क्वालिटी है कि मरकरी ही हम लोग लेते हैं थर्मोमीटर फॉर्मेशन में। तो मरकरी एक्सपैंड इन यूनिफॉर्म वे एंड ऑल्सो रिमेन इन लिक्विड स्टेट ओवर अ वाइड टेम्परेचर रेंज. It also does not stick to wall of the glass capillary tube, and it is shiny silvery liquid. It is because of this reason mercury is used in ordinary thermometer. अच्छा एक बात बताते हैं, तुम लोग ये चीज देखने के लिए घर में जो पुराना थर्मोमीटर होगा ना, नया वाला नहीं, जो पुराना थर्मोमीटर होगा ना, तो उसको जरा ब्रेक करके देखना तो कैसे मरकरी पॉइजनस है, ये एक बात बता दे रहे हैं, पॉइजनस है तो उसको केवल टच करना है। वो उसको देखोगे क्या कि वो कहीं नहीं चिपकता है, उसमें जो है
एडेसिव मैम- पावर एकदम लेस है, वाटर का एडेसिव पावर जरा बहुत ज्यादा है। उसमें वाटर में हैंड डीप करो तो हाँ हैंड में चिपकने लगता है, चिपका रहता है ना थोड़ी देर तक के लिए। लेकिन Yes, ma'am. मरकरी सरफेस पे गिरे या कहीं भी गिरने से वो देखोगे कि स्फेरिकल शेप, गोला के जैसा शेप में आया रहता है। यस मैम। हाँ तो मैम वो छोटे छोटे गोल शेप में आ हाँ जाता छोटे है। छोटे बबल्स जैसे होते हैं वैसा वो फॉर्म कर ले लेता है। मैम मैंने छुआ है। देखे हो? मैम Yes, जो yes, थर्मोमीटर का yes, ऊपर yes, वाला ma'am. मेटल होता है हाँ। वो भी मरकरी ऊपर ही- होता है। तो इसलिए वो अगर मौका मिले नहीं देखे होगे तो देख लेना कि एक कितना अच्छा थर्मोमीटर से का ऊपर इसका- वाला तो मेटल ट्यूब में जैसे ही इसको मरकरी को लेते हैं तो वो स्टिक नहीं कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है और शाइनी सिल्वरी लिक्विड है। उसको जरा सा रोटेट करके देखते हैं तो वो क्या होता है कि वो अच्छे से साइन करता है, तो पता चल गया कितना टेम्परेचर है। तो ये तुम मैम- लोग सभी रीड करके रखोगे तो रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर और फ़ारेनहाइट और ये डिग्री सेल्सियस ये पढ़ाएंगे। उसके बाद कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये बहुत बड़ा चैप्टर तो है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हाँ सबसे ज्यादा ma'am. इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, आप लोग सभी पढ़े। हाँ पूछो उदित राज। मैम जो हाँ मैम बोलो। जो मैम जो थर्मोमीटर के ऊपर मेटल लगा रहता है जो हम लोग अपने बॉडी में सटाते हैं मैम, वो भी मरकरी का ही बना होता हाँ है। वो मरकरी ही है, वो मरकरी ही है। और उधर नहीं पकड़ते हैं, उधर होल्ड नहीं करते हैं। अगर जिसको टेम्परेचर मेजर करना है तो उसी